بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے پروپوز کرتا ہوں. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ. نون لیگ کی طرف سے پرپوز کیا جا رہا اور نون لیگ کی طرف سے ہی سیکنڈ کیا جا رہا. جی میں جو ہے وہ سینیٹر ڈاکٹر عثمان اللہ خان جنید اکبر صاحب کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتا ہوں. اور نون لیگ سے آپ کا بھی تعلق؟ جی میرا تعلق. جزاک اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رانا محمد قاسم نون NA 153 جنید اکبر خان صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں. ماشاء اللہ جی. فتیانہ صاحب. جی میں نے ریاض فتیانہ میں بھی انڈورس کرتا ہوں اس نامینیشن کو. ہاں اس کی سینس ہمارے کچھ ممبر زوم پہ بھی ہیں. ہاں ان سے بھی ہم لیکن ایک اور سیکنڈ کرنا چاہیں اگر کوئی جو زوم پہ ہمارے آنریبل ممبر موجود ہیں. لیکن چونکہ اب السلام علیکم جی. if you allow me to speak please. بولیں ماشاءاللہ. وجیہ قمر. جی جی اپنا نام لے میں کر. جی جنید اکبر صاحب کو جی بالکل وجیہ قمر جی ریزرو سیٹ ویمن اور PMLN سے میرا تعلق ہے اور میں جنید اکبر صاحب کو پوری طرح سے 100 سپورٹ کرتی ہوں اور ان کو سیکنڈ کرتی ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو میڈم صاحبہ. یہ ہمارے سردار یوسف صاحب بھی شاید نظر آ رہے ہیں. سردار محمد یوسف صاحب پلیز آپ بھی ریکارڈ پہ کچھ لیں تاکہ زوم پہ آپ کی ادھر پریزنس کا ہمیں احساس ہو جائے. جنید انوار صاحب اگر کائنڈلی آپ تھوڑا سا یہ میوٹ پہ سردار صاحب آپ میوٹ پہ ہیں, ذرا تھوڑا سیدھا کر لیجیے. جی اشتاق صاحب میں سردار یوسف نیب PMLN جنید اکبر صاحب کی پرپوزل کو سیکنڈ کرتا ہوں اور پروموشن پر مبارکباد بھی دیتا ہوں. آلریڈی پروموٹیڈ ہی ہیں. جی یہ ہمارے چوری کمار جنید انوار صاحب ہمارے پہلے تو آپ ٹھیک سے یکدم سے میوٹ ہو گئے ہیں. انہوں نے اشاروں کی زبان میں کر دیا. یہ نون لیگ والے اشارے سمجھ لیتے اب جی میری ایک تھوڑی سی میں اب ریکویسٹ کروں گا چونکہ آپ نے یا تو آپ پینل کا نام ریکارڈ پہ نہ لے آتے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ پینل میں سے بھی کوئی آنریبل ممبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے بھائی جنید اکبر خان صاحب MNA ملکانڈ کو پرپوز کرتا ہوں. میرا نام عمر ایوب خان MNA NA 18 ہری پور. جزاک اللہ. ہمارے آنریبل شبیر فراز صاحب. سینیٹر کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتے ہیں, وہ سپورٹ ضرور کر سکتے ہیں. جی ہم بالکل اپنے ہمارے حضرت عزیز MNA جنید اکبر ہم اس کو پرپوز کرتے ہیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر شیزرا منصب علی صاحب. ڈاکٹر شیزرا منصب NA 112 ننکانہ صاحب. میں بالکل جنید اکبر صاحب کی کینڈیڈیچر کو سیکنڈ کرتی ہوں. ماشاء اللہ. اب تو ایسی یونانیمیٹی آئی کہ کوئی تیار ہے. اب ہم جناب جنید اکبر خان صاحب کو ایز اے چیئرمین PAC باضابطہ طور پر اناؤنس کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لے آئیں اور اپنی کرسی و صدارت کو سنبھالنے کے بعد کارروائی آگے بڑھائیں. اتفاق رائے جی بیٹھ جائیے ادھر چینج ہو جائے گی.
फ्रेम खुला कर बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तमाम मेंबरान का जो हुकूमत से जो अपोजिशन के है, अपने अपोजिशन लीडर साहब का, हमारे सीनेट में अपोजिशन लीडर साहब का, डॉक्टर साहब का, डोगर साहब का, बाकी मेंबरान का जो जोन पे है उसका, मीडिया वालों का, और जो इस साइड पे मेरे दोस्त बैठे हैं, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं भी ये रिकॉर्ड पे लेके आना चाहता हूँ, जिस तरह डोगर साहब ने फरमाया, ये रिवायात की और हमारी सब की ये ख्वाहिश थी कि शेख वक़ास साहब जो पार्टी ने नॉमिनेट किया था, उसका हमारी ख्वाहिश थी। और मैं उन लोगों में से था कि मेरी ये तक मैं कह रहा था कि हमने कोई और कमेटी उस वक्त तक नहीं लेनी जब तक शेख वक़ास साहब जो पार्टी का फैसला है उसको दे। लेकिन अपोजिशन की ये रिकॉर्ड का हिस्सा ये भी बनाना चाहता हूँ कि अपोजिशन ने एक दफ़ा फिर इस डेडलॉक को ख़त्म करने की जो है वो जो हमारी ख्वाहिश की थी और हमारा हक था जो शेख वक़ास साहब को नॉमिनेट करना। तो अभी खान साहब ने ये फैसला किया, तो मैं ये रिकॉर्ड पे मैं न उम्मीदवार था ना इस ख्वाहिश में था, पार्टी का हुक्म है, खान साहब का हुक्म है, तो मैं कबूल कर रहा हूँ। और अब भी मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जो पार्टी ने जिसको नॉमिनेट किया है शेख वक़ास साहब को, हुकूमत बड़ा दिल का मुजाहरा करे और उस वक्त तक शेख वक़ास साहब के ये बड़ापन का मुजाहरा करे ताकि हम आगे बढ़े। और उसी नाम पे जो हुकूमत ने अपोजिशन ने प्रपोज किया था अगर उस पे हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जब तक ये जिम्मेदारी मुझ पे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, सारे सीनियर लोग हैं, इंशाल्लाह मैं इससे सीखने की कोशिश करूंगा। मेरे लिए तो ये नहीं है, मैं असेंबली का 11 साल से मेंबर रहा, लेकिन कभी पब्लिक अकाउंट कमेटी की प्रोसीडिंग भी नहीं दी क्यों, मुझे अंदाजा नहीं था। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की रहनुमाई से इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे, बल्कि आप लोग मुझे लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इकट्ठे इसको चलाएंगे। और जो जिम्मेदारी हम पे बनती है इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि उस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से अदा करने की कोशिश करें। बड़ी मेहरबानी। इख्तितामी कलमात मुश्ताक साहब आप फरमाएं। जी वाह, सर कोई कमेंट करेंगे आज चेयरमैन पीएससी के हवाले से? देखें जी, ये बड़े अरसे से आपको पता है कि 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया था और हुकूमत एक हटदर्मी कर रही थी जिससे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नुमाइंदे थे उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हम समझते हैं कि हमारी ये अपोजिशन का राइट बनता था कि वो किसको नॉमिनेट करे। उन्होंने शेख वक़ास को किया था, लेकिन हुकूमत ने इसको एक इशू बना दिया और हमारी पार्टी ने एक बार फिर साबित किया है कि हम हर चीज़ में कोई ऐसा वो अपना ज़हनी तौर पे हम नहीं वो करते हैं कि जिससे कि लगे कि हम एक चीज़ पे अड़ गए हैं। तो हमने इस चीज़ को, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत अहम कमेटी होती है और हुकूमत ही ओवरसाइट करती है, तो उससे जो है तो ये हो रहा था कि हम बिल्कुल इससे फारिग थे। बिला मुकाबला सर, ये उमर साहब बिला मुकाबला है ना? इसलिए बिजी थे मीटिंग में। बिला मुकाबला। अच्छा सर, एक कमेंट दे दीजिएगा, ये यहाँ पर नून लीग और पीटीआई इत्तेफाक राय हो जाता है, बाकी अवामी इश्यूज पे क्यों नहीं यहाँ पे इकट्ठे हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सबसे बड़ा अवामी इशू तो ये है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेक एंड बैलेंस है हुकूमत के ऊपर। तो ये पहले हुकूमत ने रोड़े अटकाए थे पर अल्हम्दुलिल्लाह आज सेटल हो गया। सबसे बड़ा इशू यही है, बिला मुकाबला हुआ है। सर ये इन इश्यूज पे हुकूमत और अपोजिशन एक हो रही है, अवामी इश्यूज बाकी पे क्यों नहीं हो रही? देखिए जी, पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन का आज इलेक्शन हुआ है वो माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये फैसला था इस दफ़ा भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो है वो अपोजिशन से लिया जाए। उसके लिए अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करने के बाद जब से गवर्नमेंट हमारे से वजूद में आई है, हम 3 खत लिख चुके हैं कि आप अपने 4 नामों का एक पैनल भेजें। वो पैनल हमें आज मौसूल हुआ और बगैर किसी ताख़ीर के जो नाम पैनल में मौजूद थे उनमें से एक ऑनरेबल मेंबर को जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है, जुनैद अकबर साहब, उन्हें चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बिला मुकाबला इलेक्ट कर लिया गया है।
वो एक क्रेडिबल इंसान है और हम पूरा यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह जो गवर्नमेंट का एहतसाब है उस हवाले से बड़ी नेकनीति के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ वो अपना ये फरीज़ा सर अंजाम देंगे और गवर्नमेंट इस हवाले से उनके साथ मुकम्मल ताउन करेगी। उमर भाई मैं निकलूंगा बखर कमी है इंशाल्लाह उसको पूरा करें और जितनी हमसे हो सके इंशाल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी जो है। अच्छा जुनैद अकबर साहब, इस कमेटी को मदर ऑफ कमेटीज कहा जाता है पार्लियामान की, तो बड़े लामहदूद इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात का कैसा इस्तेमाल करेंगे? ये तो फिर आप मुझे बताएंगे कि इख्तियारात कितने हैं। इख्तियारात का तो अभी इंशाल्लाह ताला टाइम कहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो भी अल्लाह ताला ने हमारे इख्तियार में दिया है इस इख्तियार को हम अपने आने वाली नस्लों के लिए, इस ज़मीन के लिए, पाकिस्तान के लिए इसको जो जितना हमसे हो सके उस कुछ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें, न कि इस इख्तियारात को हम किसी को प्रेशर डालने के लिए अपनी कोई गलत। बिल्कुल यही मेरा सवाल था कि तनाव की जो सूरत हाल है हुकूमत और अपोजिशन में, क्या कमेटी उससे बियॉन्ड काम करेगी या उसके पेश नज़र? नहीं, इंशाल्लाह स्टैंडिंग कमेटी की तो रिवायात ही, जितनी स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें अपोजिशन हुकूमत नहीं होता, सब इकट्ठे काम करते हैं। तो बाकी कमेटियों में भी इस तरह, जिस तरह मैं पहली भी मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का भी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रह चुका हूँ और अभी मैं इससे पहले जो था ओवरसीज़ को स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। तो इंशाल्लाह तो मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश है कि सब मेंबरान को इकट्ठे लेके जाएँ और कमेटी में कोई हुकूमत और अपोजिशन नहीं होता, इंशाल्लाह ताला इकट्ठे करेंगे। जी बिल्कुल।